Hello, good everyone. My name is Nutan Kashyap and I'm a certified life coach. And as in my last Insta live, I discussed with you that September is my favorite month. And I will tell you the reason that why is it so? Because September is a birthday month for my daughter and for me. So it is really very special for me. And as I'm a mother of 4 years old daughter, so I can really feel all those tantrums which our kids throw on us. Because at times it's really annoying situation for us. And as I promised that I would have a parenting coach with me this week who will help us to understand all these things and how to handle these situations. So today I have invited Dr. Charu. She is a parenting coach. So let me just invite her. And topic for today's Insta Live is Tantrum to Tranquility. So if you would have any question regarding that, you can mention in chat box and we would answer of all those questions. So Dr. Charu has joined. I would like to introduce her. Welcome to my Insta Live, Charu. Thank It really you. Thank feels so you great. for inviting me. Thank you. And I would like to introduce Dr. Charu. She is Dr. Charu Bansal and she is doctorate in education. And her academic skills have been reflected in the research paper published in national and international journals. She is a mother of two kids and they are teenagers. Right, Charu? She is an educator, but she is turned into a life coach. And it is really so impressive, Charu. So I would like to know more about you. And today she is with us as a parenting coach. So she would answer all the questions that we parents face in our day-to-day life. Because जब हमारे बच्चे वो सारे टेंट्रम शो करते हैं ना तो कई बार रियली बहुत हार्ड हो जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करना. So welcome to this live, Charu, and it's really super feeling to have you on my Insta live. And I would really love to know more about you. So please tell me your story. What inspired you to be a life coach? Please tell me. First of all, thank you, Newton, and hello, everyone. So, as Newton, you said, na, I have turned from being an educator to a life coach. So, this is a very interesting journey. Why? Because all my doctorate work was, I was researching for the life skills of the students. And what the results came was actually बहुत डराने वाले थे कि किस तरीके से बच्चों की लाइफ स्किल्स हैम्पर हो रही हैं और बिल्कुल डिक्लाइन फॉर्म में हैं. तो नूतन उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही रिजल्ट्स मिलने के बाद सिर्फ एक ही डिटर्मिनेशन थी कि कैसे मैं इन लाइफ स्किल्स को अपग्रेड कर सकती हूँ या बच्चों को एम्पावर कर सकती हूँ. तो आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द मॉडल और वो शायद फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को वो प्रपोजल भेजती और उस तरीके से मतलब वो एक स्ट्रेच फॉर्म था कि वो प्रपोजल भेजा जाता और फिर बच्चों पे वर्क किया जाता एंड इट वुड टेक लाइक 2 or 3 years इन द प्रोसेस. लेकिन पोस्ट कोविड ये रियलाइजेशन हो गया था कि किस तरीके से ना तो खाली बच्चे, हम सबकी लाइफ स्किल्स बहुत इफेक्ट हुई हैं एंड दैट्स व्हाई अभी एक इंस्टेंट तरीका कहते ना शॉर्टकट अपनाने का टाइम है रादर देन गोइंग विद द प्रोसेस. सो आई जस्ट स्विच्ड इट to the life coach and being a parenting coach so that I can create that value in parents, students, teachers' life so that they can empower themselves. Wow, Charu, it's really so inspiring because the process जो आपको follow करना था उसमें बहुत ज़्यादा time लगने वाला था. That's why you decided to be a life coach and to help people. This is really so inspiring, Charu. Thank you. And Charu, first of all, let's welcome all the people who have joined today. Life coach Anjali, welcome Anjali. Coach underscore Pooja, welcome Pooja. Anuj underscore Taya 97, welcome Anuj. Vivek, welcome. Dinesh Patel, S.A. Kumar 2627, and Renuka Sharma underscore 12.
Welcome to all of you to this Insta Live. And if you have any question regarding any issue in parenting that I also face, you can also face. So certainly please mention in the chat box, because this is a forum for all of us to have the solution for all the problems that we face in our day-to-day life. So please mention in chat box and Charu will provide suitable answers for all those things. Welcome Frank William 56565. So Charu, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना, I'm also a mother of 4 years old. In fact, she is going to be 4 after I think 7 or 8 days on 18th. And you know what happens in these years? Like, I'm also a mother. I face a lot of issues. And I feel that all the parents, जिनके toddlers होते हैं ना, especially a 2 to 5 वाला age group, like we face many issues. बच्चा खाता नहीं है, बच्चा टाइम से सोता नहीं है, नहीं सोता है तो टाइम से स्कूल नहीं जाता है, अगर कहीं बाहर लेके जाओ तो बच्चे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और पैर पटक पटक के जब जिद करना शुरू करते हैं ना बाहर, तो थोड़ा वो और अनोइंग सा हो जाता है. That's why I really want to know that what is this tantrum to tranquility means and why does it happen. And let me welcome some more people. Manoj Thakur, welcome. Eliza _ Davis 23, welcome. So yes, Charu, please let me know about all these things. What does it mean, tantrum to tranquility? And the second thing is, yeah, why this happens, because at times really it is so annoying. Yes, Nutan, you are exactly right, because being parents we have to like suffer ही वर्ड यूज करूंगी मैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है. एक पेरेंट बनना इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्लेसिंग, बट इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, बिकॉज हमें आता नहीं है कि एक आइडियल पेरेंट या एक गुड पेरेंट किस तरीके से बन सकते हैं. और ये सिर्फ ये चीज समझनी पड़ेगी, ये जो टेंट्रम है, ये टेंट्रम एग्जैक्टली है क्या. दीज टेंट्रम्स आर द अनवांटेड अनलाइकली बिहेवियर ऑफ माई चाइल्ड. तो अगर जैसे आपने बोला ना कि बच्चा पैर पटकने लगता है, तो हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे का वो टेंट्रम थ्रो करने का तरीका भी डिफरेंट होगा. तो जैसे मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का बहुत डिफरेंट लेवल था, कि एक बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और एक बिल्कुल किसी को पता ही ना चले ऐसे रो रहा है. तो वो समझ ही नहीं आता था कि इसमें करना क्या है. अब टेंट्रम क्या है? इट्स अ इमोशनल स्टेट ऑफ माई चाइल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इमोशनल स्टेट ऑफ माई चाइल्ड. जब हमारा बच्चा पैदा होता है, बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होती हैं नूतन. उसको अपना उसको टॉयलेट ट्रेनिंग हमें देनी है, उसको ईटिंग ट्रेनिंग हमें देनी है, उसको बहुत सारे स्किल्स हमें देने हैं. हमें पता है कि वो वीक है वहां पर, बट बीइंग पेरेंट्स हम उनके इमोशनल स्किल्स के बारे में भूल जाते हैं, बिकॉज वो हमें दिख नहीं रहा है आउटसाइड फॉर्म में. आउटसाइड फॉर्म में उसको अपना सूसू पॉटी, उसको खाना खाना नहीं आता, उसको कपड़े पहनना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता. दैट इज विजिबल टू अस, बट व्हाट नॉट इज विजिबल टू अस कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन हिज माइंड. वो क्या सोच रहा है, जो अपनी बात जब वो आपको कन्वे नहीं कर पाता. बिकॉज यू सेड कि टेंट्रम का जो मेन एज ग्रुप है वो यही है. 2 to 5 इयर्स में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे. 5 के बाद उसकी इमोशनल स्किल्स डेवलप होने लगती हैं, बिकॉज ऑफ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो बिकॉज हाउ देयर पेरेंट्स ट्रेन देम, बिकॉज दे गॉट टू नो अबाउट इट. ठीक है, तो टेंट्रम क्या है? इट्स एन इमोशनल स्टेट, जहां पे उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसको बिहेव कैसे करना है, उसको किस तरीके से जो भी एक इमोशनल डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको कैसे डील करना है. ही डोंट नो अबाउट इट. नाउ दिस इज अ प्रोसेस फॉर अस फॉर टेकिंग my child from the tantrum zone to the tranquility zone. Now what is tranquility zone? When my child is happy, when my child is responsible, and when my child is somewhere self aware कि हो क्या रहा है और मुझे किस तरीके से अपने मम्मा पापा को कन्वे करना है. So this is a journey, Nutan. Nobody is, first of all we need to understand, nobody is perfect. No parent is perfect. ये एक ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस में हम लोग रहते हैं.
कोई चीज हमारे बच्चे के साथ फिट हो जाती है, कोई चीज नहीं फिट होती, हमें दोबारा से कुछ और ट्राई करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे, बीइंग पेरेंट्स यू नीड टू लाइक गेट टू नो योर चाइल्ड बाय योर ओन मदरली फादरली इंस्टिंक्ट्स। बिल्कुल And बिकॉज यू नो जी, यस प्लीज कंटिन्यू। या श्योर। क्योंकि ना मैंने जैसे आई हैव ऑल्सो अ डॉटर, तो मैंने भी ना बड़ी सारी चीजें ऑब्जर्व की है। बिकॉज एट टाइम्स अगर मैं कुछ रूल्स फॉलो करूंगी, चलो हफ्ता दिन 10 दिन वो रूल लाइक ठीक है काम के होते हैं, आफ्टर दैट उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, मेरे वो रूल्स बदलने पड़ते हैं। लाइक इन एवरी मंथ और आई वुड से इन एवरी 2 months और 3 months देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, कि हमें ना फिर वो सारे रूल्स चेंज करने पड़ते हैं, बच्चों के भी नए नए तरीके हो जाते हैं। नहीं, Yes, I definitely. have also felt that. And it is truly, as you said, suffer. And yes, that is not Angrezi wala suffer, that is Hindi wala suffer. Because parenting is really a journey and it is completely dependent on you. How do you want to take it? Either you can enjoy or you would say that it suffers me. English wala suffer. Nahin. This is really great, Charu, and it is really great information that it is the journey and not the kids. I think being parents, we also learn a lot of things from them, how to handle them, how to raise ourselves, because in that process, we also learn that how to handle all these situations. बट चारू एट टाइम्स होता क्या है ना, जैसे इतने सारे टेंट्रम्स हो जाते हैं, इवन आई ट्राई टू सूद माई बेबी इन मैनी डिफरेंट वेज, बट कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है ना कि अपना टेम्पर लूज हो जाता है। आई ट्राई टू कंट्रोल दैट, आई ट्राई टू गेट अनदर वेज टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट, बट कई बार ना सिचुएशन अनोइंग हो जाती है। सो इफ यू कुड रियली हेल्प मी विद दैट हाउ टू हैंडल दीज टेंट्रम्स जो ये बच्चे दिखाते हैं। क्योंकि होता क्या है, ये कुछ चीजें तो थी जो मेरे साथ थी, बट नॉर्मली आई फील कि सब पेरेंट्स को ये होता है, बिकॉज आई कैन सी इन माई सराउंडिंग्स देयर आर पीपल, उनके भी छोटे बच्चे हैं, कुछ 5-7 साल के, 10 साल के। डेली मॉर्निंग होता है, तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है, स्कूल जाओ, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चा गली में खेलता है, बच्चा दूसरों से चीजें सीख रहा है। बिकॉज व्हेन आवर किड्स गो समवेयर, स्कूल और फ्रेंड्स और एनीथिंग, दे अडॉप्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो बट इतने सारे चेंजेस होते हैं उस बिहेवियर में कि हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते, यार हुआ कैसे, ये किसने कहा, हमने तो कभी ये देखा नहीं, हमने तो कभी ये सुना नहीं, तो ये हुआ कैसे। I really want to know that how to handle all these things. या नूतन, इसमें जैसे आपने कहा ना कि हमें समझ ही नहीं आता, और हम लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? तो पहली चीज ये है कि जब बच्चा फिजिकल मेस करता है, मान के चलिए आप उसको खिला रहे हैं, उसको खाना नहीं आता, उसका गिरता है इधर उधर, ठीक है ना, उसका वो खेलता है तो वो मेसी होता है, यहाँ पे भी मेस है, यहाँ पे भी उसका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न अभी डेवलप हो रहा है। उसको नहीं पता कि उसको किस तरीके से उस टैंट्रम को एक बहुत अच्छे वे में दिखाना है, अपनी बात अच्छे वे में मनवानी है, या किस तरीके से वो जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसको भी नहीं समझ में आ रहा। यू बोथ आर एट द सेम पॉइंट। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आई एम एन अडल्ट, he is a child, she is a child, I am an adult. Being an adult, what is your responsibility? First of all, calm yourself. जब हमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो सबसे पहला क्या है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टेक डीप ब्रीथ्स। बच्चा कर रहा है, उस टाइम आपको भी नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड, रीजन बिहाइंड यू डोंट नो। और उस टाइम अगर आप बच्चे से पूछोगे भी कि क्या रीजन है, क्यों तुम इतना रो रहे हो, तो वो और ज्यादा अपना टेम्पर वो भी लूज कर देगा, एंड सिचुएशन विल गेट वर्स। तो टू get control of the situation, first of all you need to be at the calm. But most of the parents come to me and say कि मैम होता ही नहीं है ऐसे, कैसे काम रह ले। वो मॉल में हम गए, उसको वो चीज चाहिए थी और उसने तो पैर पटकने शुरू कर दिए, जमीन पे लेट गया, सब पब्लिक हमें देख रही है, हमें क्या करना है। तो बहुत ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं जहां पे एग्जैक्टली वी समटाइम्स गेट एम्बैरेस्ड, समटाइम्स हमें ये लगता है दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, हमें वो लॉन्ग लास्टिंग दिखाई देता है कि ये तो अब मेरे साथ अब हमेशा ही ऐसा होगा।
I am in such a state, I'll going to face it again and again in my life. So this is here. वो हमें ये नहीं लगता कि this is a I phase, agree वो with चल you. I agree with you because it happened with me too. I would like to share an incident. I think I around 10 or 12 days ago हम भी मॉल गए थे मेरी बेटी के साथ, और वहाँ पे टॉय शॉप तो बड़ी फैसिनेटिंग सी वो लोग रखते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड शी वाज लाइक मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गन भी चाहिए, डॉल भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो फॉर अ मोमेंट लाइक थोड़ा सा अनोइंग था बिकॉज शी वॉज गेटिंग स्टबन, वो बड़ा जिद कर रही थी ये भी ये भी ये भी ये भी। बट इन द एंड व्हाट आई ट्राइड, एंड आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू दैट इज इट वर्दी, बिकॉज हर बच्चे का, एज यू ऑल्सो सेड, हर बच्चे का अलग बिहेवियर होता है, अलग बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। व्हाट आई डिड, इंस्टेड ऑफ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैंने उसको ये बोला तुम डिसाइड कर लो तुमको एक चीज क्या चाहिए और नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। Then she agreed कि मुझे एक गन ले दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, and we happily came back from there, and it worked See, in my case, चारू। एग्जैक्टली तो अभी जो मैं आपको एक इसको डील करने के तरीके बताना चाह रही थी, उसमें से एक अब आपने ही बता दिया अपने आप कि यू गेव योर चाइल्ड अ चॉइस। जब हम बच्चे को डांटेंगे, धमकाएंगे या लेक्चर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये वो बहुत सारी चीजें हैं बीइंग पेरेंट्स हम कर जाते हैं, उसका यहाँ का उसका ब्रेन डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाने लगता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। और ये आपने भी देखा होगा कि अगर इससे पहले कभी आपने इस तरीके की बात करी होगी उस पर्टिकुलर टाइम में, तो आपने यही पाया होगा कि बच्चे को कुछ समझ आएगा ही नहीं, किसी की नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल, इनफैक्ट जितना हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे ना कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, शी वुड बी मोर लाइक मेरे को तो यही करना है, एंड शी वुड बी, उसने चलाना शुरू कर देना कि नहीं यही चाहिए, यही करना है, ऐसा ही होता है। इट हैपेंस चारू, अग्रीड टू यू। राइट। और वो जाती है चीज ऑटो पायलट फॉर्म में। तो जब आपका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाता है, इट बिकम्स योर ऑटो पायलट मोड, कि वेन एवर नाउ इट विल हैपन, वो बच्चा ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में रिएक्ट करने वाला है। So the one thing we as a parent need to understand, one strategy I'll be sharing right now, और अगर हमने वो strategy को follow कर लिया तो definitely from that tantrum zone your child will move to the tranquility zone. But again remember it is a journey, on off होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो बस हो गया फिट एकदम क्योर हो गई वो चीज। उसको पैटर्न बनने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा। So let me share the strategy with you all. Charu, sorry to interrupt. Let me just welcome some more people who have joined. Hire 7970, Sangal Shiva, Mr. Manoj Thakur is saying great initiative regarding children's skill. Thank you for that. Miss Monica, digital_Mohit, Vipin Gupta 8415, Cute Sanjeev Goyal 26, Milan Mehta 2505. Welcome to all of you, and today's topic is tantrum to tranquility. So if being parents you are facing any issue that your children, your baby is going so many tantrums, you are feeling it difficult to handle all these, if you have any question related to this you can mention in the chat box. एंड चारू, यस, आप बता रही थी कि इन सबको हैंडल कैसे करना है या इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना है ना, प्लीज बताइए। Right. So I'll be sharing one strategy which I call a ready strategy. You need to be like ready for the situation. Now this ready is READY. Spelling ये नहीं है. The spelling is REDI. Simple. Four step formula. So first R will be reduce your words, rethink and reflect. तो जब हमने बोला ना कि उस टाइम पे ही हमें सब कुछ पूछना होता है बच्चे से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, तो वो जो एक लाइक हमारे जो वर्ड्स का फ्लो है वो ही हमें चेक पॉइंट करना है, वहीं पे हमें रुकना है। यू हैव टू लाइक टेक अ पॉज, बी काम एंड जस्ट रिफ्लेक्ट दैट व्हाई इट हैपेंड। अपने आप से पूछना है, बच्चे से नहीं पूछना। आपको वो पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करनी है
कि वो ऐसा कौन सा पैटर्न है जब ये टेंट्रम थ्रो करता है इस पर्टिकुलर तरीके के. So that is your first R. You need to ask why with yourself, not to the kid. Then you need to ask what lesson is there for me in this situation. आगे से मुझे ऐसा क्या नहीं करना जो ये situation repeat नहीं होने वाली. The second one, E, that is embrace emotions. Embrace emotion of your child. जिस तरीके से यू एम्ब्रेस, जब वो खाता है और वो स्पिल ओवर हो जाता है तब भी आप एम्ब्रेस करते हो ना उसके उस पर्टिकुलर फेज को, इसी तरीके से उसके जो ये इमोशनल स्विच ट्रिगर्स हैं उसको भी आपको एम्ब्रेस करना है. एंड फॉर दैट द एक्शन पॉइंट इज देयर आर सर्टेन टच पॉइंट्स जो आपको और आपके बच्चे को कनेक्ट करता है. मे बी किसी बच्चे को हग्स पसंद है उस पर्टिकुलर टाइम में, कुछ कहना ज्यादा नहीं है, जस्ट हग हिम और हर. मे बी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर आप हग करो तो वो और बिल्कुल, ज्यादा. इट हैपेंस एट टाइम्स. तो लाइक मेरे बेटे को उस टाइम पे हग्स पसंद थे, बट एज फार एज माय यंगर डॉटर इज कंसर्न उसको तो बिल्कुल टच पसंद ही नहीं थे. तो मैं वहां कामली बैठी रहती थी. इट्स लाइक you show your attention that yes you understand it's happening. बिल्कुल. वो बच्चे के यहाँ पे फीडिंग जाएगी. yes this is normal, this is not something very abnormal. तो मैं बस वहां अपनी बेटी के साथ बैठी रहती थी as if I am just understanding what is she is going through, as if I am there to hold the space for her. So that is how I embrace emotions in both my children, and both were extremely different from each other. तो जो मेरे बेटे के साथ फिट हुआ वो मेरी बेटी के साथ कभी फिट नहीं हुआ. तो I have to find out some other ways. And the third D is describe not preach. हमारा क्या होता है, हम प्रीचिंग जोन में जाते हैं और वो भी हमें कब करना है, उस टाइम नहीं करना, वो सिचुएशन को पास ऑन होने देना है. बट एक मोमेंट ऐसा आता है पूरे दिन में जब आपके और आपके बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है. मे बी वो बेड टाइम हो, मे बी वो ईटिंग टाइम हो. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो बस आपको शुरू के 2 स्टेप्स में बता रही हूँ, वो उस सिचुएशन को खत्म होने के बाद करने हैं, सो दैट द प्रॉब्लम डज नॉट रीअकर, that pattern does not reoccur. So you need to like describe something ki, in the form of story, in the form of your own personal childhood past, in form of something कि उसको कहीं रिफ्लेक्ट अपॉन, वो बच्चा खुद से रिफ्लेक्ट अपॉन करे उस सिचुएशन को. आपको ये तुमने ये किया था, फिर ऐसा हुआ था, ऐसा तुम्हें नहीं करना था. तो दिस इज ऑल द प्रीचिंग फॉर्म. Then the last one is I, which is involve your child. So when you are telling the story, आपने स्टोरी जो सुनाई है, आपका जो इनर पर्पस है to take your child to that particular area of his mind, of his neurological pattern कि वो connections develop कर पाए. Now if you involve your child in giving a choice, कि अच्छा बताओ अगर आप होते तो आप क्या करते इस सिचुएशन में, उस टाइम पे एक प्लेवे जोन में, एक स्टोरी जोन में, या अपने किसी भी पैटर्न में, दैट इज योर ओन इनोवेशन, उसमें आपको लेके जाना है बच्चे को. सो द क्रक्स इज आइदर जस्ट गोइंग इनटू द ट्रेडिशनल मेथड्स, spanking, timeouts, lecturing. We need to again reconnect ourselves to some innovative methods. इसको modern parenting, conscious parenting इसलिए कहा जा रहा है because today the children are 21st century kids. They are no more like us. Really, So Charu, these points were really so helpful. And the thing that I have really got, because कई बारी पता है क्या होता है, मेरी मदर भी कहती है ये तुम लोगों का टाइम कुछ और था, एंड इट इज, टाइम हैज रियली बीन चेंज. इसीलिए ना हमारे बच्चों की हैबिट्स भी अलग हो गई हैं, and the way of parenting has also changed a lot. We need to deal with them differently, right? And let welcome some more people. Official Jordan Jones and Braniel _ Simon.
वेलकम टू दिस इंस्टा लाइव। एंड चारू, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे। As the information that you have provided today, it is really very helpful. And you are also a mother of two kids, and they are now teenagers, so they have grown up, right? और मेरी बेटी जो है वो भी 4 साल की है, ठीक है। आपको भी कुछ इश्यूज आए होंगे फॉर श्योर जब वो लोग छोटे थे, एंड इवन आई फेस सम थिंग्स। we try to tackle those things because we understand that our life goes in patterns. We try to understand all these things and try to behave according to that, right? लेकिन कई बारी ना मेरे को ऐसा फील होता है, दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क इट टू यू, दैट डिड यू आल्सो फील सो? हम कहते तो है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट इज इट रियली सो इजी? बिकॉज आई डू नॉट फील सो। कई बार रियली में लगता है कि नहीं यार, बहुत मुश्किल है ये चीज समझना और इम्प्लीमेंट करना, रियली मुश्किल है। सो आई रियली वांट टू नो, वाज इट इजी फॉर यू when your kids were so young, I mean up to this 2 and 5 year wala age group? Was it easy? Actually, Nutan, your question is direct from the heart. So it's very easy to say, but very difficult, really difficult. But one thing, it's not impossible. It's Yes, difficult, definitely. it's not impossible. The only thing you're asking this question, see how much concerned you are to become that good parent for your child, so that उसकी जो memory basket हो वो with lots of good memories से भरी हुई हो, rather वो उस वाली memories से हो जिसमें आपने बहुत डांटा हो, मे बी आपने गुस्से में हिट भी कर दिया हो, मे बी कुछ बहुत अगली पिक्चर्स. So you really want to make your child basket of memories with full of love, compassion, embracing, understanding each and everything, and that's why you are asking this question from me also. From my experience, one thing I'll say, that every time it's very difficult to get to know our own emotions as well, because we are also the parents. हमें बहुत सारे roles इससे पहले कर चुके हैं, being a daughter, being a sister, being anyone, but being a mother is first time we are into this boat. The best Yes. part is, am I ready to learn how I can be a wise parent? I'm not talking about the good parent. It's about Understood. Yes, I can learn to be absolutely. wise parents. So being parents, it's again a journey, a process. You need to refer to some books. You maybe refer to some ऐसा वाला पेरेंट जिसको आप लुक अपॉन करते हो कि हाँ, इसकी पेरेंटिंग स्टाइल इज समथिंग विच आई रियली लुक अपॉन. तो आप वहां से आप कुछ इनसाइट्स ले सकते हो. नाउ द कल्चर इज मोर ऑफ अ मेंटर और अ कोच, because they have some research based experiences with them. You can take the help from them. और आप ऐसा करना चाहते हो, and that's why you are finding out the ways how you can help yourself and your child. Maybe कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत कम रह गए, लेकिन बहुत कम रह. You are also a mother and I am also a mother, and I feel being mothers ना, हम लोग चाहे कुछ भी करें ना अपनी लाइफ में, लेकिन जब हमारा बच्चा आगे बोलता है ना कि थोड़ा डांट भी दिया ना, बट व्हेन दे कम टू यू एंड से आई लव यू ममा, तो उससे ज्यादा वो इमोशनल, वो ब्यूटीफुल मोमेंट ना, या उससे ज्यादा वैल्यूएबल थिंग हमारी लाइफ में कुछ नहीं होती. That's why we want to cultivate those lovely memories with our kids कि जब वो grown up होना तो उनको ये ना लगे यार नहीं, इसने तो मेरे को डांटा था, इसने तो मेरे को बात बात पे टोका था. Because that time has been changed, the style of parenting has been changed. तो अब जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो पर्सनली इवन आई एंड आई थिंक ऑल द मदर्स वांट्स द सेम कि जब बच्चा बड़ा होना तो उसके माइंड में यही चीजें रहे कि यार नहीं, मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, नहीं, एंड इफ आई से आई लव यू आई मीन इट, because she has really done a lot of things for me. She understood me, she enjoyed with me, she gave me time and everything. Because we are the mothers and we can understand that feeling. Yes, yes, Nutan, you are absolutely right. So one thing I want to here mention, that ये जो children का brain है, this is changing, this is changeable, and this is complex.
हमें ये सारे सीज याद रखने हैं कि ये चेंज हो सकता है, एंड this is complex also. So again, it Yes. needs a lot of training. And once you are कहते ना in the victor mode of train your child how to handle his or her emotions, then definitely one day you will feel कि वो बच्चों में बहुत अलग stand करता है, because top skills की जो आज के टाइम में need है, and that is your emotional intelligence. It's not about your IQ, Absolutely. it's about your EQ Yes. Yes. nowadays. It's very important skill, and all the parents who are in this phase, आप कहीं से भी सीखने की कोशिश करो, बस सीखो कि कैसे इसको डेवलप कर सकते हो अपने में भी, अपने बच्चों में। Absolutely. And it will be really helpful. And Charu, you came to my Insta live, you gave all these valuable information. It really means a lot to me, and I feel it is really helpful for all the people who are the part of this Insta live and who will be watching this live later. And Charu, in the end, I would really want to ask that do you have any message for the audience? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि अभी ये इस टाइम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा मेरा टाइम निकल गया, मैंने तो ये गलतियां कर दी। तो ये फैक्टर को उठा के डस्टबिन में डाल देना, बिकॉज व्हेन यू गेट टू नो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। Yes. If your child Yes, is because 4.5, maybe your child is 7, maybe your child is 10, doesn't matter. You start from where you are. and you So know, this is whenever we start from where, that is the beginning of our action. So don't worry about कि मेरा बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है. That's perfectly fine for you. Don't feel guilt for that. At least start doing this, because that is really going to bring a change in your life and your baby's life. I'm right, Charu? yes, definitely. So every time I तो always say myself, start afresh. Yes. चारू start afresh. Doesn't matter. गलती तो होएगी. चलेंगे तो गलती हाँ. होएगी. Charu, so So thanks for coming to my Insta live and providing all this information. And the people who are here, if you want to ask any question, please mention in the chat box. Miss Monica Smiley saying thank you. You're welcome, Monica. All right, Charu, would you like to say thank you so anything much, else? Nutan, and thank you everyone for just listening patiently and trying to figure out कि मुझे क्या pick करना है यहाँ से. तो take a one key takeaway, and definitely you will find your life transforming and blossoming. Thank you Bye for bye. this message, Charu. Thanks for being on this live. Take care. Have a nice day. And if it would be possible, we would invite Charu on our Insta live again in future. I hope, Charu, you would come. Looking forward to see you again. Definitely. Love to. Love to. So bye bye everyone. All right. Bye, everyone. Take care. Have a nice week. Have a nice weekend. Enjoy your life.